Life is a one-time gift. This I have learned from my mother and father, that anything that comes in the way of your success is nothing but your excuse. Today, the teacher has to understand that the teacher has to be facilitator. Hello and a very warm welcome to Great Principles. I am Seema Choria. Many a time it happens that we are forced into choosing a career either by chance, circumstances, or family. These career options are weighed on by the financial aspirations or what can one earn out of a certain career. Some dedicated souls go the other way. There is a very famous quote by Tony Dorsett: to succeed, you need to find something to hold on, something to motivate you, something to inspire you. Our guest today chose the humble, noble profession to be a teacher. He has borne the cross of adversity, yet marched ahead with his head held high. He was inspired to do something good, and his love for teaching motivated him to choose this as his career. He surely has succeeded what he had set out to do. His achievements elevate him as an educator of repute in and across the country. A celebrity in his right, I'm happy to have him and join us today for an enriching talk about his life and future endeavors. We are extremely honored and privileged to welcome Dr. Bijay Kumar Sahu, Director cum Principal, Leeds International School, Patna. Welcome to Great Principles, sir. Thank you so much, ma'am. And it's my privilege to be here on this platform to share my views. And I always believe that wherever I'm a very good learner, so I'm very sure that even after this conversation with you, I will be learning a lot of things. So definitely, I will be taking away many things from you. So you're so humble and so a seasoned leader telling me that he'll be learning something from me. This truly is a sign of your modesty, sir. Thank you, thank you. It's So, your sir, university now. Begin by knowing something about you, sir. Your once upon a time, your early days, and please take us back to your growing up years. Okay, ma'am. Nice thing. It's always nice to recall our childhood, and it's always special. I was very fortunate to be born of the greatest couple. That is my mom and dad. They are my God. They are my everything. So I feel myself the luckiest person of this world to get him as my father and my mother as my everything. So my mother, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बात बताते हुए. मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, बट उन्होंने अपने बेटे को ऐसा तैयार किया है कि उनका बेटा लाखों बच्चों को शिक्षा दे रहा है. तो दैट इज ये मेरी माँ का वो संस्कार एंड ऑल दैट है. मेरे पापा वो संस्कृत में ऑनर्स हैं उस समय के. तो उन्होंने वो रामायण और गीता और ग्रंथ वो सारी चीज उनको याद है. मतलब ही इज अ मैन ऑफ डिफरेंट लेवल. हम लोग इंसान हैं और वो थोड़ा इंसान से ऊपर वाले लेवल पे हैं. तो इट्स नॉट ओनली दैट ही इज माय डैड, दैट्स व्हाई मैं ये सब बोल रहा हूँ. एक्चुअली ही इज अ पर्सन लाइक दैट. तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से दे केम एंड we started our journey in Jamshedpur. I was born and brought up in Jamshedpur, Jharkhand. तो वहाँ पे my parents took this pain that they admitted me in one of the very fine schools, that is Church School, Beldi. That's an ICC board school in Jamshedpur. So I was very fortunate that I got my schooling up to +2 from that Church School, Beldi. So that was the place where I got the pillars of my education. There I was generally good at everything. I was the school captain of cricket. I was a volleyball player. I was a bit notorious also. That is because of the age maybe. But I was very good at studies. I always used to come first, second, sometimes third, not fourth. Because once before class 7th, I was very bad at studies. But in class 7th, I somehow I got second rank, and then I realized, God, this success brings so many things. It gives you love, it gives you respect, it gives you so many things. So then I tasted success, and Bill Gates says nothing succeeds better than success. तो वहां से जो सक्सेस का नशा लगा, सो जैसा बिल गेट साहब कहते हैं कि nothing succeeds better than success. तो वहां से आई अंडरस्टूड एंड आई रियलाइज्ड. हालांकि उस समय मैंने बिल गेट साहब को नहीं सुना था, बट ये मुझे इनर फीलिंग हुआ. एंड देन आई अंडरस्टूड, बेटा जिस भी काम करना है, जो भी करना है, सक्सेस तो प्राप्त करना है.
Okay, and success not in quantitative term. Later in my life I realized that so it's a whole qualitative term. So in the school age मेरे पापा जो थे वो मुझे क्या करते थे, वो जब ऑफिस से आते थे दोपहर में वो खाना खाने के लिए आते थे, तो वो खाना खा के सोते थे, बट वो मुझे क्या करते थे, बैठ जाओ मेरे पास और तुम रीड करो। तो अब चाहे अनचाहे मैं रीड करता था, तो मेरा मन हो या नहीं हो पापा मुझे बिठा करके बोलते थे तुम पढ़ो, रीड करो। तो मैं कभी तो मतलब वैसे रीड करता था, और कभी कभी जान मुझको थोड़ा जो इधर से उधर से इंग्लिश सुनता था, और राम वाज प्लेइंग एंड ऑल दैट, तो जबरदस्ती बनावटी इंग्लिश जो होता था वो आई डिड, बट वो मुझे बहुत हेल्प किया। और वो क्या करते थे, फिर शाम में उनको ऑफिस जाना होता था, तो वो मुझे कुछ होमवर्क दे के चले जाते थे, बड़ा सिंपल, राइट अ लेटर टू योर ग्रैंडफादर टेलिंग दिस, कुछ भी दे के चले जाते थे। हाँ, तो वो मैं जो लिखता था ना, तो फ्रॉम देयर आई लर्न हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। सो वहां से अच्छा मतलब होने लगा, तो दैट आई थिंक क्रिएटेड ए पिलर। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज रहा कि मेरे छोटे भाई बहन और मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जो बहुत नालायक थे, वो पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं थे, और मुझे ये बात अच्छा हो गया कि मैं उन लोगों को भी डांट डांट के पढ़ाता था, पिटाई कर करके पढ़ाता था, पढ़ो एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो इवन बोर्ड एग्जाम मेरा भी होता था, देवर माई बैचमेट, क्लासमेट, माई फ्रेंड्स, बट फिर भी मैं उनको पढ़ाता था। तो देयर वाज अ time in my career, in fact at that time the career hasn't even started, my friends made me realize you don't know that you are a damn good teacher. टीचर कौन बनना चाहता है, बचपन में तो कभी सोचा भी नहीं था कि टीचर बनूंगा। तो फिर मेरे छोटे भाई बहन एंड मेरे फ्रेंड्स उन्होंने बोला कि आपको पता नहीं है कि आप कितने अच्छे टीचर हो। तो मैंने बोला वेरी फाइन, चलो फिर इसी में अपना करियर बनाते हैं। एंड देन आई स्टार्टेड माय करियर इन दिस। पापा को शुरू में लगा कि ये पता नहीं क्या कर रहा है, किधर करियर स्पॉइल कर रहा है, क्या कर रहा है। ही वांटेड जो बिहार और इस तरह के गवर्नमेंट लोग होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब कर ले, तो उनको भी लगा कुछ गवर्नमेंट जॉब कर लेगा। तो उनको लगता था शुरू में बेटा हाथ से गया, ही इज नॉट गुड एंड ऑल दैट, बट ग्रेजुअली आफ्टर माय +2 the family situations were not very conducive, or they were not very good. I am the eldest son of my family, so unfortunately my father met with a heart attack, so all of a sudden the source of income was zero. So I dropped 1 year because I had to take care of my family, my father, my ailing mother, my sister's marriage, जो हिंदी फिल्मों में होता है 60s, 70s, 80s की फिल्मों में, वो सारा चीज। बट आई फील अगेन वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे अपनी फैमिली का भी ये सेवा करने का मौका मिला। सेवा नहीं है ये, आई ट्रीट इट एज माय फर्ज, ये मेरा फर्ज है। तो मैंने अपने पापा को देखा है कि वो कैसे मैन ऑफ हिज हाउस है, और कैसे उन्होंने अपने जीवन को जिया है। जीवन में आप क्वांटिटेटिव अर्न करके ना आप सुकून नहीं प्राप्त कर सकते हो, तो सुकून प्राप्त करने के लिए ना दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। वो जो ब्लिस बोलते हैं ना, ब्लिस अर्न करना, वो ब्लिस अर्न करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लाइफ इज अ वन टाइम गिफ्ट, दिस आई हैव लर्नड फ्रॉम माय मदर एंड फादर। और मेरी माँ ने मुझे जो संस्कार दिए, कि पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता जस्ट टू गेट डिग्रीज, ये मुझे मेरी माँ से सीखने को मिला कि पढ़ाई का मतलब होता है कि जो नॉलेज आप में है आप उसको कैसे अपने जीवन में रिफ्लेक्ट कर पाते हो। दिस आई लर्न फ्रॉम माय मदर, so she is definitely my first teacher and she will forever remain my first teacher. And then of course my second teacher is my dad and he's my hero. So बचपन में उन्होंने वो सारी चीजें दी जाने अनजाने में, जिसके वजह से I could turn to be a personality what I am. After that I did my graduation, फिर 1 साल पढ़ाई छोड़ना पड़ा, but then I started teaching, और फिर धीरे धीरे थोड़ा अर्न करना शुरू किया। पापा को खर्च बढ़ गए थे बहुत ज्यादा, तो घर को संभालना एंड एवरीथिंग दैट वाज, बट दैट्स पार्ट ऑफ द लाइफ, सभी के जीवन में आता है अलग अलग तरह से। तो आई टुक दिस चैलेंज वेरी सक्सेसफुली एंड आई वेंट अहेड। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन इंग्लिश, फिर आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन एजुकेशन, फिर आई कंप्लीटेड माय बीएड, फिर आई कंप्लीटेड माय एमबीए फ्रॉम सिम्बायोसिस, फिर आई कंप्लीटेड माय पीएचडी। अब सोच रहा हूँ लॉ पढ़ लूं, बिकॉज सोचा हूँ कि जब तक सांसें चले तब तक कुछ सीखते रहना चाहिए। Because I believe the more I learn, the more I earn. Not earn again, not in the quantitative term, always in qualitative term. So this is how I started my childhood, and this is how things went ahead. Yeah. So sir, surely आपके मम्मी पापा आपके लिए रोल मॉडल रहे हैं, and they have their reflections on you, and that is what we can see today, sir. You are a very humble person. And when we talk to you, we can feel that simplicity, that radiation coming, that no one needs to be grounded, and that is what sir is all about. So
true role model are your parents. So we salute your parents for making you grow up in such a beautiful manner. Thank you, ma'am. ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. This is a real honor. I'm overwhelmed. Thank you so much. So sir, going ahead, sir, आपने जैसे बताया कि आप कैसे मतलब आपके फ्रेंड्स ने जब आपको बताया तुम बहुत अच्छे टीचर हो and you got motivated to be a teacher. और उस समय में और आज में फर्क ही हो गया. Today you are highly qualified. So अब आप डायरेक्टर हो. So do you still teach? और अगर आप पढ़ाते हो तो आप क्या अलग करते हो कि लोग आपको बता दें कि तुम बहुत अच्छे टीचर हो? मैम मैं फॉर्चुनेटली अब चूंकि 21 इयर्स का जर्नी हो गया है, तो फॉर्चुनेटली नाउ आई एम वेरी वेल सेटल्ड. आई हैव अ वेरी गुड जॉब. आई हैव सम बिजनेस आल्सो. सो बहुत सारी चीजें मैं करता हूँ. एक प्रोफेसर हैं, यूरोपियन प्रोफेसर है, उनको मैं पढ़ रहा था. मैं रीडिंग बहुत करता हूँ, उनको मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने लिखा था कि द बिजिएस्ट मैन हैज मैक्सिमम फ्री टाइम. तो ये कैसे भाई, द बिजिएस्ट मैन हैज मैक्सिमम फ्री टाइम कैसे होता है? तो बिकॉज ही नोज टाइम मैनेजमेंट. अदरवाइज क्या है कि आप क्लास 1 के बच्चे से बात करो, बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, इतना होमवर्क मिल जाता है. आप एक हाउस मेकर से बात करो, बोलेगी घर का खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं. एक टीचर से बोलो, बोलता मुझे टाइम नहीं मिलता, ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास. नो माय डियर, भगवान ने किसी को 25 आवर्स नहीं दिए हैं, भगवान ने सभी को 24 आवर्स दिए हैं. इट्स हाउ यू मैनेज योर टाइम. ओके, तो आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स व्हिच आई डू, डेफिनेटली टीचिंग इज माय फर्स्ट लव. आई कंसीडर माई सेल्फ टू बी अ हेड टीचर. मैं अपने टीचर्स को बोलता हूँ कि don't treat me as a principal and director, treat me as a head teacher. And whenever I get chance, थोड़ा मुश्किल होता है in this schedule time निकाल पाना, but I love, I really, जब मैं क्लास में जाता हूँ तो I forget that who I am. मतलब बाकी बल्कि फोन अपना दोनों फोन साइड कर देता हूँ and I tell nobody कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा for this duration. And I enter the class and I enjoy. और क्योंकि मैं एंजॉय करता हूँ पढ़ाना, तो वो बहुत बच्चों में भी वैसे ही जाता है. बिकॉज जो आपके पास है आप वही दोगे. तो मेरे पास एंजॉयमेंट है पढ़ाने में, तो बच्चों को भी एंजॉयमेंट चला जाता है पढ़ने में. तो बच्चे कहते हैं, और वो उनके आंखों से भी दिखता है कि आई एम वेरी गुड टीचर. वैसे ऑफ कोर्स ये अवार्ड्स भी मुझे मिले हैं, बट द बेस्ट थिंग इज दैट मैं कहीं पे भी खड़ा हो जाऊँ ना, आज 21 इयर्स में दिस आई हैव ऑन, कहीं पे भी मैं 10 मिनट अगर खड़ा हो जाऊं, भीड़ में हूँ कहीं पे भी हो, तो कहीं से कोई ना कोई आएगा और वो पैर छू के प्रणाम सर. तो ये मैं हीरो बन जाता हूँ, ऑल ऑफ अ सडन सेलिब्रिटी बन जाता हूँ. वहां के अगल बगल के लोग, अरे भाई इसका पैर छू रहा, साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति. तो whether my students today they are doctors, even IAS officers, politicians, and you know how I just imagine how proud मैं फील करता हूँ कि आज मेरे 5 स्टूडेंट्स प्रिंसिपल हैं बिहार में. तो मैं उम्र से उतना नहीं दिख रहा हूँ, बट 21 इयर्स का एक्सपीरियंस वो बोलता है. तो मेरे 5 स्टूडेंट्स प्रिंसिपल हैं. तो यू नो मैं दादा हो गया हूँ काइंड ऑफ. मेरे 2 स्टूडेंट्स स्कूल के मालिक हैं, मतलब दे रन ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेज. तो मतलब यू नो दिस इज समथिंग टू बी ऑन. बट आई लव टीचिंग. टीचिंग इज माय फर्स्ट लव. बहुत मजा आता है पढ़ाने में. सर, तो सर आपका ये सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? आप ऐसा क्या अलग करते हो जो बाकी टीचर्स नहीं करते हैं? कोई भी काम को जब आप करते हो ना, तो काम को 2 तरीके से होता है. एक तो आप काम को करते हो और दूसरा होता है आप प्यार करो. ठीक है, प्यार इज अ वेरी बिग वर्ड. मेरा जो पीएचडी है उसको भी रोमांटिसिज्म पे है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा उस पे बोल सकता हूँ, बट उतना अभी डीप नहीं जाऊंगा. तो आप प्यार करो. वंस यू स्टार्ट लविंग योर वर्क, द रिजल्ट विल बी वेरी डिफरेंट. ओके, और दूसरी बात है, अपने आप को ना जनरली ये होता है कि लोग सैलरी से कंपेयर करते हैं. यार मेरा सैलरी तो इतना के है, तो इतना में तो मैं इतना ही मेहनत करूंगा. यहाँ पे क्या हुआ, किसी और ने नहीं, आपने अपने आप को तौल दिया. ये कभी नहीं करना चाहिए आपको. तो तब क्या हो रहा है ना, देन यूर क्वांटिटेटिव टर्म में आप चले गए. तो जब आप ही ने अपनी एक रेट बना दी, बोली लगा दी, तो फिर achievements, forget your failures. In the class, you are just a person जिसको कि 40 बच्चा, 40 students are sitting in the class. They are giving their 80 eyes and 80 ears to you. So my dear, at that time, उस 45 minutes के लिए वो 80 eyes और 80 ear और 40 minds वो पूरी तरह से आपको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, सुन रहा है. तो इसलिए आपको अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए. एंड जस्ट एंजॉय योर वर्क. आप जो स्क्रीन से एंजॉय करने लगोगे, the result will be very different. You will definitely be a very effective teacher there. So to all the teachers out there, the only secret formula is love what you do. Exactly. So Yes. teaching, and then you see the result happening. Yeah, so, exactly. Here, I just wanted to just tell my viewers again that today we are having this episode in the blend of both the languages, Hindi and English, so that we can reach out to masses. I forgot mentioning this.
So going ahead, sir. The current role of yours as a director, आप अभी director हो, तो आपके हाथ में है, आप कैसे चीजें change कर सकते हो, how you can bring in quality into education and excellence into service. So आपसे जानना चाहेंगे कि आप आपके teachers को, आपके subordinates को कैसे motivate करते हो. जैसे अभी आपने कहा कि अगर आप अपने काम से प्यार करोगे तो आपका reflection होगा. So how, in what you do to motivate them so that they become an ideal teacher like you? Exactly. Very nice question, ma'am. मैम जो हायर चेयर पे बैठते हैं, मैं अपने चेयर पे जब बैठता हूँ तो डेली मैं चेयर को प्रणाम करके बैठता हूँ और प्रणाम करके उठता हूँ. ये चेयर को मैं इसलिए प्रणाम करता हूँ क्योंकि वो चेयर नहीं है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो भगवान ने मुझे उस लायक बनाया कि मैं उस रिस्पॉन्सिबल चेयर को पे बैठने के लायक हूँ. तो सिर्फ वो उसपे, जैसे जब आप बड़े चेयर पे लेते हो ना, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप पे आती है. So when I am a principal and a director, तो a lot of responsibility also I have to shoulder. तो जिसमें कि एक बहुत important role होता है कि teachers को आप कैसे motivate करते हो. Because आज का जो materialistic world है, we have to सभी philosophy से काम नहीं हो सकता है. तो we have to understand the facts also. The fact is that in this materialistic world, there is a very big percentage of teachers who are not teacher by choice. I'm not offensive. I'm not being offensive. Please don't take me otherwise. It's only the fact and what my experience I'm just sharing. So many teachers, they just take this as a job. See, एक एंगल से ये हमारा नौकरी है, बट आपको पता होगा, एटलीस्ट इन इंडियन कल्चर एंड इंडियन सोसाइटी, टीचर को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है. तो यू शुड अंडरस्टैंड माय डियर, जब आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो आपको कितना उम्मीद के साथ दिया गया है. तो और इस लाइफ में क्या रखा हुआ है, एवरीबडी हैज, जो भी आया है दे विल गो अवे वन डे. बट इस जो ये ड्यूरेशन आप रहते हो, 60 साल 70 साल, जितना साल भी आप इस रहते हो, तो इसको कितना आपने दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट किया, दैट इज हाउ व्हाट मेक्स योर लाइफ ग्रैंड. तो टीचर्स को मैं हमेशा बताता हूँ, आई ट्राई टू मोटिवेट देम, बिकॉज हनुमान जी को भी ये आइडिया नहीं था कि वो समुद्र पार कर सकते हैं. तो उनको भी एक मोटिवेशन चाहिए था, तो उनको भी मोटिवेट किया, एंड दस रामायण दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ये बन गया. तो दैट इज व्हाट आई ट्राई टू डू, कि मैं भी अपने हनुमान को मतलब टीचर्स को वो मोटिवेट कर सकूं. तो ये सबसे बड़ा एक माध्यम होता है टीचर्स को एनकरेज करके रखने का. तो आप कैसे करोगे, उसके लिए बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वो करना चाहिए. और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि द प्रिंसिपल और द डायरेक्टर हैज टू बी अ रोल मॉडल. अगर आप रोल मॉडल नहीं है तो आप सिर्फ एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. आप सिर्फ बोल करके इंस्पायर नहीं कर सकते. एक्ट एंड देन आप, एक लीडर का काम होना चाहिए टू प्रोड्यूस गुड लीडर्स. सिर्फ अच्छा भाषण दे लो, अच्छा काम कर लो, उससे नहीं होगा. यू हैव टू प्रोड्यूस गुड लीडर्स. तो टीचर्स को मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है. जहां पे उनकी गलती हो रही है, उनको समझाना कि कैसे उसको अच्छा करेंगे. डांटना नहीं, डांटना इज अ डिफरेंट थिंग. उनको समझाओ कि हो सकता है वो टीचर अपना बेस्ट दे रहा होगा, स्टिल द टीचर इज नॉट गेटिंग रिजल्ट. इफ यू आर सीनियर देन यू शुड हैव सॉल्यूशंस. तो मुझे सॉल्यूशन उनको बताना पड़ता है. Sometimes the way of teaching may not be good. Sometimes teachers भी एक human being है, उसका family problem, personal problem हो सकता है, जिसका कि असर उसके दिमाग में जो नहीं होना चाहिए. तो there also being human also at times you have to have that balance, that आपको professionalism और थोड़ा personal touch भी दे पाओ, ताकि teachers जब आपके स्कूल में एंटर करे ना, तो वो उस comfort zone में आ पाए, ताकि वो मोटिवेटेड होकर के सब कुछ को, अपनी परेशानियों को और सब कुछ को भूल करके when he is in the class or she is in the class, वो अपना बेस्ट दे पाए. तो ग्रेजुअली एवरीबडी एक स्टेप तो आगे जरूर बढ़ेगा. एंड इन शॉर्ट रन द रिजल्ट विल बी स्वीटर. तो अगर मैं इसको सम अप करूं सर, कि टीम लीडर बनने के लिए आपको टीम प्लेयर बनना पड़ेगा, तो वुड इट बी राइट? यस मैम, वेरी राइट. सो ऑन दिस नोट वी मूव अहेड सर, कि अभी आपने मतलब एक और बातों में हमें एक चीज बताई थी, और आई रिमेम्बर टॉकिंग टू यू अर्लियर आल्सो, यू टोल्ड दैट पेरेंट्स जो होते हैं उनकी सबसे बड़ा जो असेट है उनके बच्चे, और उनकी अर्निंग्स, दोनों चीजें हमको देते हैं. Yes. सर अभी क्या होता है, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे कुछ फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स की वजह से, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से पेरेंट्स वो एजुकेशन नहीं दे पाते हैं. एंड तो हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं ताकि ये जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है पेरेंट्स का, ये हम मिटिगेट कर सके. एंड व्हाट इज द फिलॉसफी, हाउ डू यू फॉलो योर फिलॉसफी एट लीड स्कूल? जैसे आपने बताया कि कुछ कारण की वजह से पढ़ाई छूट जाती है, बट हमें फिर से उसको ज्वाइन करना चाहिए और हमें लाइफ लॉन्ग पढ़ते रहना चाहिए.
सो आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाली फिलॉसफी है, आप इसको लीड्स इंटरनेशनल स्कूल में कैसे अप्लाई करते हो और आपके बच्चों में कैसे इम्बाइब करते हो? यस मैम, पहले मैं थोड़ा जनरलाइज पे बात करूंगा, देन आई विल कम टू लीड्स इंटरनेशनल स्कूल कि हम लोग क्या करते हैं। मैम, इन जनरल, लाइक व्हाट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम माय लाइफ, दैट एनीथिंग दैट कम्स इन द वे ऑफ योर सक्सेस इज नथिंग बट योर एक्सक्यूज। ये सुनने में शायद थोड़ा हार्श लग रहा होगा, बट आई टेक इट लाइक दिस, एनीथिंग दैट कम्स इन द वे ऑफ योर सक्सेस इज नथिंग बट एन एक्सक्यूज। मतलब अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं ना, तो वो आपका एक्सक्यूज है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एकलव्य के टाइम से चला आ रहा है। दुनिया के एग्जाम्पल में से सबसे बड़े एग्जाम्पल है एकलव्य। जब द्रोणाचार्य जी ने उनको पढ़ाने से मना कर दिया, उन्होंने उनका स्टैचू बनाया और वो सेल्फ लर्नर बने। विलियम शेक्सपियर साहब, शायद ही कोई बंदे होंगे जो का नाम नहीं सुने होंगे। आपको पता है विलियम शेक्सपियर साहब जो हैं वो कॉलेज कभी नहीं गए हैं, और उन्होंने क्या अपना और इंग्लिश को क्या दिया है द वर्ल्ड नोज टुडे। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बिल गेट्स साहब, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इनफैक्ट मैं खुद भी वैसा ही एक एग्जांपल हूँ, छोटा सा, बहुत छोटा सा वैसा ही एक एग्जांपल हूँ। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फिर भी रहते हैं, एंड एवरीबडी इज नॉट केपेबल इनफ टू हैंडल एंड मैनेज दोस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। अगर आपको कहीं पे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो आज गवर्नमेंट की बहुत बॉडीज हैं, एनजीओज हैं जो ऐसे सपोर्ट करते हैं, और बहुत सारे टीचर्स भी होते हैं जो रियल टीचर्स है ना। जैसे मैं भी, अगर जब मैं सिर्फ पढ़ाता था, तो अगर कोई अपने एडमिशन फॉर्म में लिख देता था ना अपने फादर के नाम में लेट समथिंग, तो मेरा हिम्मत नहीं होता था उससे फीस लेने का, और मैं उसको फीस माफ करता, मतलब वो देने के लायक नहीं होता था, फिर भी मैं सामने से बोलता था भाई मुझे फीस मत देना, जब मैं अपना कोचिंग वगैरह चलाया करता था। क्योंकि देखो वो क्या मुझे दे सकता है, लेकिन अगर मैंने थोड़ा पैसा देगा, लेकिन अगर मैंने उसे कुछ दे दिया तो उसका लाइफ संवर जाएगा, एंड इवन द नेक्स्ट जनरेशन संवर जाएंगे। ओके, तो ऐसे भी टीचर्स हैं। तो थोड़ा तो अगर आपके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो थोड़ा आपको सर्च तो करना होगा, ऐसे एनजीओज या ऐसे पर्सन्स को ढूंढना होगा जहां से आपको सॉल्यूशंस मिल पाए। रही बात हमारे स्कूल की, लीड्स इंटरनेशनल स्कूल, so Leeds International School understands that we have some social responsibility also. We have started this Leeds. We actually run a group of schools, and I am the director of the whole group. So we have our school, Leeds Asian School, that is running from last 20 years. And every year we produce IITians, people from NEET and IAS. So we have a legacy of last 20 years. So when we were starting this school is actually in a bit rural area. So I asked my chairman, sir, that sir, आप लीड्स इंटरनेशनल स्कूल, मतलब पैसे हैं हमारे पास इतने, रिसोर्सेस हमारे पास इतने हैं, तो वहां पे आप क्यों सोच रहे हैं, क्यों नहीं किसी अच्छे जगह में सोच रहे हैं जहाँ पे बिजनेस हम लोग अच्छा कर पाए। तो सर, चेयरमैन साहब श्री रामेश्वर सिंह जी, उन्होंने मुझे बताया कि विजय सर, हम लोग का एम, पैसे तो हम लोग बहुत कमा लिए, अब चलिए कुछ समाज को दिया जाए। तो वो रूरल बेल्ट में आए। तो मतलब पहले तो मैं भी डरा था कि इस रूरल बेल्ट में स्कूल को कैसे स्टैब्लिश करेंगे। उन्होंने कहा था पेशेंस रखिएगा और परसेवरेंस रखिएगा, और यस, विद इन 1 year period, you know, the students thought and everything got changed. हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अपने फीस स्ट्रक्चर को रिड्यूस कर दिया थोड़ा। इवन हमारा फीस स्ट्रक्चर जो हमारा जो दूसरे स्कूल है, मेरे ही हमारा स्कूल, हमारी ग्रुप का, we have reduced the fees in Leeds International School so that students of even lower middle class they can afford. Another thing what we have done, हम लोग RTE, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 25% स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाते हैं, उनका सारा खर्चा स्कूल देखता है। देन इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द 25%, हमारे स्कूल में ऐसे कोई बच्चे आ जाते, जैसे मुझे टू कोट सम, अभी जो मुझे याद आ रहा है, एक बच्चा क्लास 5 में आई थिंक था, आज से 4 साल 5 साल पहले, अभी नाउ ही इज इन 9th, शुभम आई थिंक उसका नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नाम में आई मे बी कंफ्यूजिंग। तो वो बच्चा का फादर उसको छोड़ दिया, whatever the family personal reasons होगा, उसकी माँ बहुत मुश्किल से फीस दे पाती थी। तो मैं जब वो आती थी मिलने ना, तो मैं I was able to read कि वो कुछ प्रॉब्लम है। तो I asked कि what is the problem? तो she एक बार रोते रोते बताई। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि write an application, we will see what best we can do. फिर हमने उस एप्लीकेशन को अपने सोसाइटी जो हमारा ट्रस्ट है वहां पे रखा, और उस बच्चे को उस समय से लेकर के अभी तक हम लोग उसका फीस नहीं ले रहे हैं। We are not charging any fees. तो ऐसा भी हम लोग करते हैं, एंड वी डोंट बिलीव इन मार्केटिंग और ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि हम लोग, ये मैं हूँ, चेयरमैन साहब हैं, हम लोग सब ये मानते हैं कि अगर राइट हैंड कुछ कर रहा हो मदद वाला काम, तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए। तो या उसलिए मुझे उस बच्चे का नाम भी नहीं याद है, बिकॉज अच्छा काम करके आपको गिनाना नहीं चाहिए, फिर ऊपर काउंट नहीं होगा। मुझे याद आ रहा है, मेरी 3, 4, 5 की क्लास टीचर थी, जॉयस मैम,
तो वो पढ़ाती थी मॉरल साइंस हमें। तो वो बताती थी कि when you do some good things, what do you expect? So every class, the whole class said, everybody, even I said, we expect a thank you. तो वो तो हमने बोल दिया, we expect a thank you. मैम ने बोला कि see, if somebody says you thank you, it is good. But if somebody doesn't say you thank you, it is very good. We all said, छोटे छोटे बच्चे उसमें, how it is very good ma'am if somebody doesn't say thank you, because हमें स्कूल में भी सिखाया गया था मैनर्स अच्छे होने चाहिए, आपको थैंक यू, सॉरी, ये सब गोल्डन वर्ड्स होते हैं. So how it is that अगर कोई थैंक यू नहीं बोले तो what ma'am taught us, if but उस बंदे ने आपको थैंक्स नहीं बोला तो that is recorded in God's account. तब गॉड ने आपके अकाउंट में वो लिख लिया कि ओ दिस चाइल्ड हैज डन अ गुड डीड, तो वो आपका एक थैंक यू गॉड आपको देगा इन हिज ओन वेज. तो वी वर सो फैसिनेटेड, अरे वाह. तब तो फ्रॉम दैट डे वी स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दिस, भाई अच्छा काम करो, पलट के थैंक यू मत बोलना. कोई थैंक यू बोलता था ना उस एज में भी रिमेंबर, तो हम बोलते नो डोंट से थैंक यू, बिकॉज हमें लगता था कि वो हमारा कुछ काउंट ऊपर नहीं हो रहा. तो मे बी द टीचर टुक दिस वे, बट वो टीचर बहुत बड़ा बात हमें सिखा रही थी कि बेटा अच्छा काम करना बट उसको गिनना मत. So that was actually what the teacher was teaching, which of course now we understand. So ऐसे छोटी छोटी चीजों से ना टीचर देखो, नाउ आई एम एबल टू रिकॉल 30 साल 35 इयर्स चीजें पहले का. तो कौन सा चीज, कौन सा टीचर का कौन सा चीज वो आपको मार्क छोड़ देगा, यू नेवर नो. सो अ टीचर हैज टू बी वेरी सेंसिटिव एंड अंडरस्टैंड कि वो उसके निकला हुआ एक एक शब्द किसी बच्चे के माइंड में कौन सा इंप्रेशन छोड़ देगा. तो टीचर हैज टू बी वेरी सेंसिटिव. Absolutely, sir. Teachers touches so many lives और उनकी कौन सी बात आपकी लाइफ चेंज कर देती है, एक स्टूडेंट की लाइफ चेंज कर देती है. ये टीचर को भी बहुत बार पता नहीं होता है. वो जब वो स्टूडेंट वापस बताते हैं, मैम आपने ऐसा बोला था इसलिए मैं हूँ. So then they related. So sir, when I read about Leeds International School and that too in Patna, I was wondering यार ये बहुत difficult state है, यहाँ पे Leeds International चल कैसे रहा है. So that is what something again attracted me, that I need to talk to this director. How is he managing this thing? And you said नहीं, जैसे आपके चेयरमैन सर का जो विजन था कि नहीं हमें कुछ सोसाइटी को करना है, we need to give back. फी स्ट्रक्चर कम करते हैं. So wonderful philosophy and with a very good vision of giving back. This school is built on. फर्स्ट ईयर मुझे अगेन याद है, फर्स्ट ईयर मुझे याद आ रहा है मैम, हम लोगों ने एडमिशन फी वेव कर दिए. सर ने बोला कि बच्चे फिर भी लीड्स इंटरनेशनल स्कूल में आने में डरेंगे फाइनेंस की वजह से, तो लेट्स सी, उनको यूनिफॉर्म फ्री दे देते हैं और जस्ट लेट देम अंडरस्टैंड कि व्हाट इज क्वालिटी एजुकेशन. एंड फॉर्चुनेटली टुडे वी आर द बिगेस्ट ब्रांड. सो इट हैज ऑफ कोर्स टाइम इज अ बिग इन्वेस्टमेंट. सो दैट्स फाइन. एंड व्हेन यू गिव तो जो खुशी मिलती है ना, दैट इज द रियल एम ऑफ योर लाइफ. Yeah, that is the story of every successful person, that they understand. And after reaching to certain point, we understand the joy of giving back. Exactly. खुशी जो फील होती है, that is priceless. Absolutely, that is priceless. और सब क्योंकि अब हम जब प्राइसलेस और खुशियों की बात कर रहे हैं, तो चलिए अब हम कुछ आपके अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस के बारे में बात करेंगे यहाँ पे. सर, यू हैव बीन bestowed बाय बिहार गौरव अवार्ड, एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड, बेस्ट टीचर अवार्ड, यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड. ये सारी आपकी सक्सेस स्टोरीज और बहुत ऐसे हैं जो आपकी सक्सेस स्टोरीज और आपके काम को सराहते हैं सर. तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या अवार्ड्स एक एजुकेटर के लिए लॉन्ग रन में मैटर करते हैं? मैम मैटर करते हैं. इट डज मैटर बिकॉज इट मोटिवेट्स यू फॉर डूइंग मोर गुड, तो इट मोटिवेट्स. एंड डेफिनेटली जो ऐसे बॉडीज हैं, द बॉडीज और सच ऑर्गेनाइजेशंस which has this authority, they must come up and they must appreciate the teachers who are doing good job, because क्या होता है कि this motivation वो बहुत काम कर जाता है at times. Okay, although personally if I talk about myself, so see, I believe, my personal thing is that I believe in karma, that action speaks louder than words. तो ये awards वगैरह कितने हैं, अभी आपने कुछ बोले मुझे तो याद आ रहा, बट हर साल 2-3 अवार्ड तो मिल ही जाता है. तो आई मीन उसका याद रख पाना या रिकॉर्ड, बिकॉज नाउ आई डोंट वर्क फॉर द अवार्ड्स. वो अवार्ड मिल जाता है, वो समाज का, सोसाइटी का और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का. आई पे माय ग्रेटिट्यूड टू देम. बट जो रियल सबसे जो बेस्ट अवार्ड होता है ना, दैट इज द अवार्ड from the parents' eyes, that you can feel, the vibes you can feel, the vibes that you feel from your students. That is the, these are not tangible, but they are the greatest award. Like, this is what I feel. And of course, but these awards also, when your name comes in newspaper and at different platforms, you get motivated. So young teachers ko to definitely award karna chahiye. So it is definitely good. Yeah, because there are two things, either finance or motivation. So, Yeah. you always crave for appreciation, recognition. So that definitely pushes you.
एवरीथिंग फ्रॉम मॉनिटरिंग। तो बहुत बार एक रिकॉग्निशन बहुत हिट कर देता है एंड पर्सन को पुश करता है कि वो और बेटर रिजल्ट्स दे। सर आपने थोड़े समय पहले एक बहुत अच्छी बात बोली थी जिसको हम एक अवार्ड की तरह देख सकते हैं कि आप एक बच्चे को एजुकेट करते हो तो आप उसके साथ में उसके आगे आने वाली जनरेशन को एजुकेट कर देते हो। दैट इज biggest award that a teacher gets when she educates so many children. She is in turn educating generations. Yes, 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 yes. So on this beautiful note, we reach to the very interesting segment of the show, which is called fun facts. तो हमें मालूम है आपके बहुत सारे students आपके बारे में कुछ fun facts जानना चाहेंगे. So you have to answer this segment in one word, sir. And now the first question goes: who is your favorite actor or celebrity, Indian or international? Mr. Amitabh Bachchan and Akshay Kumar. I appreciate their work. All right. How do you spend your leisure time? Music, art, cooking, what you like doing? I love music because वो जो space होता है ना, then I just try थोड़ा काम से जो मतलब general तो थोड़ा soft थोड़ा ये हो गया. I love gardening. मुझे घर में gardening करना बहुत पसंद है. Like Sundays को या जब भी time मिलता है तो मैं शुरू हो जाता हूँ gardening because that relaxes me. And of course reading. I read a lot because when I read I'm able to see the world from their eyes also. Like जब मैं कलाम साहब को पढ़ता हूँ तो मैं कलाम साहब की नजरों से दुनिया को देखना सीखता हूँ. जब मैं गांधी जी को पढ़ता हूँ तो उनके नजरों से दुनिया देखना. गांधी जी has been a very good teacher. पता नहीं, I mean, well that will take a long discussion. But otherwise Gandhi ji also has been a great teacher. Okay. Right, so we are all talking about the Gandhian philosophy by in the NEP talking all about the skill education and bringing it back. So, exactly. Yes. And you rightly said, sir, अगर आपको एक ही जिंदगी जीनी है तो आप बुक्स मत पढ़ो, लेकिन अगर आपको बहुत सारी जिंदगी जीनी है तो आप बुक्स पढ़िए. Absolutely, very true. Yeah. Next question: name your favorite attire. आप क्या पहनना पसंद करते हैं सबसे ज्यादा? मैं मुझे I love wearing kurta pajama, but मैं बहुत कम पहन पाता हूँ क्योंकि always tie and coat में because that's my profession demand. So, but I love wearing kurta pajama. Sir, when we were researching upon you, we saw your maximum pictures in suit and tie. So it pushed us to understand कि सर को actually क्या पसंद है. So, sir, it's very simple. सर को कुर्ता पजामा पसंद है, उनको नहीं पहनना है कोट और टाई, वो बस पहनना पड़ता है. Yeah. Actually, I have to be. Yeah. Yeah, sir, please tell. Actually, because I teach my students also that see the tie when you're wearing a tie, so this collar button has to be buttoned up, your tie knot how that has to be. So again, as I believe कि मुझे role model बनना पड़ेगा. So that is why मैं हमेशा कोट टाई में रहता हूँ. अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं because of the lockdown and all. That is why. Otherwise, so I'm always in a very formal dress. Right. You actually, बच्चों को ये क्वेश्चन रहता है हम पूरा दिन टाई कैसे पहने, तो when you practice it, they automatically look up to you, right? Very rightly said, sir. Going ahead, sir, name your favorite travel destination. Sikkim. Yeah, Sikkim. beautiful place, beautiful. It's like a one heaven on the earth. Yes, I love Sikkim, ma'am. Gangtok, very beautiful places are there. Now, last question. क्या आपको टीवी देखना बहुत पसंद है? Are you a TV buff? Yes or no? Not at all, ma'am. Not at all. न्यूज देखता हूँ. बाकी मेरे बच्चे मुझसे अनॉयड रहते हैं. पापा आ गए तो न्यूज चलेगा. तो बाकी मुझे टाइम मिलता है तो आई प्रेफर रीडिंग एंड ऑल दैट. तो आई अवॉइड ज्यादा फालतू का टीवी में वो स्टफ्स नहीं है जहां से आप अपने आप को ग्रो कर पाओ. क्या होता है, just if I'm allowed for one more minute or two more minutes. So क्या होता है ना, we all are very much conscious about our health कि हमें खाना अच्छा खाना चाहिए, योगा करना चाहिए, अच्छा फूड खाना चाहिए. वेरी गुड. दूसरा हमारा कंसर्न होता है हमारे लुक्स को लेकर के. हमारा बाल अच्छा होना चाहिए, हमारा स्किन अच्छा होना चाहिए, हमारा अटायर अच्छा होना चाहिए. एंड हाउ पिटी इट इज माय डियर, ये सब चीजें बाहर की हैं. आपका सोल, आपका माइंड, इसको आप क्या खिला रहे हो, लाइक क्या इनपुट आप दे रहे हो. तो अगर आप at this platform I cannot take any serious name or any channel's name, but वो ऐसे rubbish stuffs आपके दिमाग में डालते हैं तो फिर तो आप जो आप इनपुट डालोगे the same output you will get. So you should keep yourself away from all those things. Try to have good inputs. और बहुत सारे sources हैं, free sources हैं, available resources हैं from where you can get great inputs. And जैसा thought process आपका आएगा ना, वैसे ही फिर again आप develop करते हो into a personality. Your thought process also shapes like that. तो थोड़ा you should be a bit choosy कि आपको क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या पढ़ना है.
Absolutely. So, whenever you get time, engage in productive activities which develops your brain and ultimately your overall personality. There is a very small difference between waste and invest. तो अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो that will be waste. अच्छे से किया तो that is invest. So it's like this. Yeah. So, sir, now we come to another section of the show, which is, आपने जैसे बताया आपके मम्मी पापा आपके लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं. They were kind of your role model in those days. So now today, whom do you look up for your inspiration in today's time? Ma'am, well, there are many persons who inspire me. As I said you, that जब मैं अपने ड्राइवर को देखता हूँ बहुत अच्छा गाड़ी चला रहा, मैं उससे भी सीख लेता हूँ यार ये गाड़ी ऐसे चला रहा है. जैसे अभी आपको मैंने शुरू में बताया था, I will take away a lot of things from you also. तो आपसे भी मैं बहुत कुछ सीखा हूँ. और प्रोफेशनली अगर मैं बात करूँ तो चेयरमैन सर, एज आई सेड, उनके फिलॉसफी को से बहुत सीखा हूँ मैं, बहुत. डेफिनेटली ही इज अ ग्रेट मैन. देन डॉक्टर राजीव रंजन हैं, ही इज द फाउंडर ऑफ बॉल्डविन ग्रुप ऑफ स्कूल्स. उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला. ही हैज इन 30 years, more than 30 years, he has shaped many lakhs of students. बहुतों के करियर को उन्होंने शेप करा है. डॉक्टर सीबी सिंह हैं, ही इज ऑल्सो ग्रेट एजुकेशनिस्ट. तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. मे बी डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, उनके काम को देख करके. मे बी वी डोंट टॉक ऑन वेरी डेली बेसिस, बट उनके काम को देख करके, उनके इंटरव्यूज को सुन करके, आपको एकलव्य बनना पड़ेगा अगर अच्छा सीखना है. तो आई लर्न फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. मे बी वो लोग जानते भी नहीं होंगे कि आई ट्रीट देम एज माय मेंटर्स, बट यस, आई डू ट्रीट देम एज माय मेंटर्स. Yes. Definitely, sir. And yes, we all need someone to look upon, and you have your brilliant mentors in your life to always guide you, to motivate you to do the right things. So this brings to me to the last question of the show, which is called viewers choice questions, sir. So हमको अभी बहुत ऑडियंस से फीडबैक आने लग गया है, कि आप एजुकेटर से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछिए कि आप एजुकेशन में हम क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या बदलाव हो सकता है. आप एक रैंक होल्डर स्टूडेंट रहे हो. So for you, it has always been like, seeing the best as a successful student. But ऐसे बहुत सारे एवरेज बच्चे होते हैं जो क्लास में एक कॉर्नर में होते हैं, जिनको स्कूल में वो, जैसे आपने बोला ना, हम फर्स्ट आते तो हीरो वाली फीलिंग आती है, तो वो कॉर्नर में है एंड घर पे भी उनको वही प्रेशर होता है. तो अब आपके हिसाब से, आपके लेंस से, आज हम बहुत बातें कर रहे हैं, मार्क्स, एग्जाम, इवैल्यूएशन, एनईपी, स्किल लर्निंग, बहुत सारे हॉट टॉपिक्स आज चालू है डिस्कशन में. एग्जामिनेशन कैसे होने चाहिए, मार्क्स कैसे होने चाहिए. तो आपके लेंस से आप कैसे देखते हो एज एन एजुकेटर, आप क्या चेंजेस लाना चाहोगे एजुकेशन में? मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एजुकेशन का. फर्स्ट ऑफ ऑल द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, the whole process has to be very good, okay, very effective. Today the teacher has to understand that the teacher has to be facilitator. आज से 50 साल पहले आप देखेंगे कि एक टीचर एक गांव में एंट्री करते थे ना, तो गांव के लोग ऐसे हो जाते थे, टीचर साहब, मास्टर साहब आए हैं, तो why that man got respect. अगर ये मतलब उस जमाने के लोग से हम बात करेंगे तो we will learn, तो वो आदमी को उतना रेस्पेक्ट क्यों मिलता था? वो इसलिए मिलता था because that person was good at knowledge and very good at संस्कार also, okay. बट आज के समय में अगर हम देखेंगे और अगर हम ये अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करें, ओके, अगर हम ये सोचेंगे तो हम देखेंगे कि आज के समय में हम स्टूडेंट से बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं. जितना मैं जानता हूं, अगर मेरे स्टूडेंट को जानना हो तो उसके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, द होल वर्ल्ड इज उसके हाथ में है, एंड द गाय कैन गूगल और वो सब कुछ जानता है. तो आज आपका एज अ टीचर, बच्चा आपसे नॉलेज का उम्मीद नहीं रखता है, बच्चा आपसे फैसिलिटेटर का उम्मीद रखता है. बी अ मोटिवेटर, बी अ पाथ शोअर, एंड जहां बच्चा गलत कर रहा है वहां पर उसका उंगली पकड़ करके चलना सीखिए, उनको चलाना सीखिए. सो टुडे द टीचर्स रोल हैज चेंज्ड, और अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर यू विल हैव टू फेस प्रॉब्लम्स. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है दिस असेसमेंट. सो असेसमेंट शुडंट ओनली बी, जैसे बेसिकली क्या होता है कि एवरीबॉडी इज वरीड, मेरा 90% क्यों नहीं आया, मेरा 95% क्यों नहीं आया, उसका 98% आ गया, मेरे बच्चे का 94% आया. माय डियर, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो आप लोग? असेसमेंट का मतलब ये कहीं नहीं होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली ये है. बट असेसमेंट का मतलब होना चाहिए कि स्टूडेंट्स अपना लर्निंग प्रॉब्लम समझ पाए, टीचर्स अपना टीचिंग प्रॉब्लम समझ पाए. यानी कि असेसमेंट का मतलब होता है फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, दोनों के लिए. तो दिस असेसमेंट मेथोडोलॉजी हैज टू बी चेंज. आई मीन, इफ आई हैव something to do here, definitely I do in my school, but that is at a small level.
at large, I'm talking about at mass level, at large level, this assessment has to be changed. You know, the way of assessment has to be changed. And fortunately, very recently, 2-3 days before, the government has come up with a new circular about SAFAL. So there, the government has changed a bit of assessment things, but still, it has to go. Implementation or execution. अगर ये हो पाए, then definitely this will be something good. So assessment में अगर हम लोग थोड़ा changes करें ना, so it will be good. So हमें चाहिए कि हम लोग अपने पढ़ाई लिखाई को, the teaching learning process को और effective बनाएं, ताकि बच्चा को हम लोग ये समझा पाए कि बेटा life is a one time gift. So बच्चों को जो हम लोग बचपन से सिखाते हैं ना, tell about myself, और उसमें एक लाइन जरूर रहता है, I want to become a doctor, I want to become an engineer. यही गलत हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग बच्चे का aim गलत सिखा देते हैं. I remember मेरा बेटा, fortunately I have twins, a son and a daughter. So my son, because maybe he keeps on hearing me, या पता नहीं क्यों. So some 8 years back, his uncle, who is an aspirant of IAS, so he asked him, what is the aim of your life? So my son said him, very casually, my aim of life is to be happy. And this was, even I had not thought like this. मैं करता ये जरूर था, but I had not thought, I had not given words to this. And my brother was so inspired. He came to me and he asked, "भाई तुम कैसे पढ़ाते हो अपने बच्चे को?" मैंने बोला क्या हो गया? So he said to me, "You know, your son today, I asked him, what is the aim of your life?" And he said, "My aim of life is to be happy." And yes, that is the real aim of our life. आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IAS बनो, क्यों बनना चाहते हो? Because you want to be happy. Even you want to be a businessman, you want to be happy. तो हम लोग बच्चों को ये सिखाना चाहिए, बेटा life is a one time gift, make it grand, है ना? और be happy. कुछ भी करो, खुश रहो. You will be able to feel the bliss. That means you will be able to feel the heaven here, right, on earth itself. Yes, sir. So very beautifully shared by you that teachers are no more knowledge keeper. Now their role is being changed to facilitator, to mentor, to more approachable, to someone a child can count upon as a counselor, also as a friend also. Yes, so yes. That is what should be the vision while teaching now. And definitely we are seeing a change, from past 5 years, there are a lot of things happening in terms of evaluation. And soon we'll be seeing this drastic change coming in. As you said, कि पढ़ाई का आउटकम रिपोर्ट कार्ड नहीं होता है, पढ़ाई का आउटकम होता है कि आपने क्या सीखा. It's learning, it's not marks. So very soon it will be implemented and we'll be viewing this. So sir, it was really lovely to have you here. You are an excellent communicator. आपने हमको totally engage किया आपके साथ में, and we were enjoying every bit of communication. And with your smiling face and your energy, it's truly wonderful hearing you. So my dear viewers, this was Dr. Vijay Kumar Sahu in conversation with us. And yes, here I would like to quote one thing which I've learned from sir, that live as you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. I think this sums up and the entire vision what sir has. So be a learner forever. And sir, thank you so much for your time giving us and taking your time out to talking to us and sharing your life with us. The pleasure was mine, ma'am, and thank you and all your team members and all the viewers. And I give my best blessings to all of you. May you all have a great life ahead. Thank you very much.